ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ रंजीता चाह जुड़े हुए ने। रंजीता अपने आप में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कब तक आएगा। रंजीता दा रुख करांगे, विस्तार दे नाल पूरी जानकारी लैण दी कोशिश करांगे। पहला तुहानूं विस्तार दे नाल ओह बाइट भी सुना दिंदे जिस दे विच पूरी जानकारी दित्ती गई है इस दे अज दी बैठक नूं लैके। हरीश रावत ने की कुछ कहा है, तुहानूं ओह भी सुना दिंदे हाँ। बजे के करीब। तो सर अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा? हल्द्वानी में होगा या देहरादून में होगा? हल्द्वानी में होगा। हल्द्वानी में उनका हल्द्वानी में होगा और हल्द्वानी में होगा। कांग्रेस भवन के नाम पर हल्द्वानी में भी प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ रखा जाएगा। सबको अभी जब ले जाएंगे तो वहाँ रखा जाएगा। तो ये इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं रही। उत्तराखंड का इलेक्शन भी आने वाला है, कितना बड़ा लॉस हुआ है। ये हम इलेक्शन के दृष्टिकोण से नहीं, उनका ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी हर मुकाम पर, हर क्षण, हर समय जरूरत थी। केवल कांग्रेस को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को उनकी आवश्यकता थी। वो लाखों लोगों की मार्गदर्शक थी, शिक्षिका थी। वो केवल पैसे से शिक्षिका नहीं थी, व्यवहार से भी शिक्षक थी। न जाने कितने लोग उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे मार्गदर्शन लेकर के सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए। तो वो उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में अद्भुत था। संघर्ष से उभर करके एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर वापसी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। 2002 में जो सत्ता। सो अज की इस मीटिंग में बैठक लैके वधेरे जानकारी लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जिथों मेरे सहयोगी रंजीता चाह जुड़ी हुई है। रंजीता, आज 3 मेंबर हैं जो कमेटी के, उनकी तरफ से मुलाकात, मीटिंग की है राहुल गांधी के साथ। क्या माना जाए आज की मीटिंग के क्या मायने निकाले जाएं? कब तक हाई कमान की तरफ से पंजाब कांग्रेस की कला को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? परविंदर, देखिए आज 10 बजे राहुल गांधी ने अपने आवास पर इन 3 सदस्यीय नेताओं को बुलाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमेटी के चेयरमैन थे, हरीश रावत और इसके साथ ही वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल। तीनों ही नेताओं के साथ 1 घंटे तक मंत्रणा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर जो निकल कर आ रही है परविंदर, वो ये कि स्पेसिफिक नेताओं के बारे में बातचीत की गई। बात सुनील जाखड़ के बारे में की गई, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में की गई, प्रगट सिंह के बारे में की गई। और जो खबरें निकल कर आ रही है इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी 2-3 मुख्य बातें निकल कर आ रही है। पहली तो ये कि बैठक में ये कहा गया कि प्रदेश कमेटी जो है वो पूरी तरह से डिफंग है,
क्योंकि कमेटी के पास जो है वो सिर्फ अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, कमेटी पूरी तरह से गठित नहीं है। ऐसे में जब 6 महीने बाद पंजाब में चुनाव होना है और कमेटी अगर प्रदेश कमेटी जो है वो अगर पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष से और कुछ जो उनके कमेटी मेंबर है उनको लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द जो कमेटी है उसका गठन होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी पहले भी हमने दी थी कि कमेटी गठन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ये बात आज राहुल गांधी के साथ बैठक में भी कही गई कि कमेटी जो है वो पूरी तरह से डिफंक है क्योंकि उनके पास नेता नहीं है। इसके साथ ही प्रगट सिंह के बयानबाजी से आला कमान नाराज है। प्रगट सिंह ने कमेटी के सामने तो अपनी बात रखी, लेकिन इसके अलावा जो मीडिया में उन्होंने बात रखी उसको लेकर नेतृत्व जो है वो नाराज नजर आ रही है। इसके साथ ही जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रगट सिंह दूसरे भी पार्टी के संपर्क में है। ये जानकारी भी प्रगट सिंह के बारे में आज की राहुल गांधी की मीटिंग में इस बात को साझा किया गया और हो सकता है आने वाले समय में प्रगट सिंह पर किसी तरह की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि नाराज थे कांग्रेस। जो राहुल गांधी से जब बातचीत हुई, बैठक हुई नेताओं की, जो सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से प्रगट सिंह पर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी कर सकती है, क्योंकि उनके बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हुआ है, ये कहना है कमेटी के सदस्यों द्वारा। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू पर आते हैं परविंदर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू का है और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये कमेटी भी बनाई गई है। नाराज चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर अपने ही मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। तो आज की बैठक में भी नवजोत सिंह सिद्धू पर बातचीत की गई, लेकिन पत्ते नेतृत्व ने नहीं खोले कि आखिर किस तरह की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाएगी। ये जरूर कहा गया कि जो रिपोर्ट दी है इन 3 सदस्यीय कमेटी के नेताओं ने, उन नेताओं की राय जरूर ली गई कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने सभी विधायकों से बातचीत की है, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, मौजूदा सांसद से, पूर्व सांसद से, पंजाब से नाता रखने वाले उन तमाम नेताओं से बात की है। तो ऐसे में इन 3 नेताओं का भी फीडबैक लिया गया और जो 4 पेज का जो रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। जाहिर तौर पर अहम मीटिंग है ये। 1 घंटे तक राहुल गांधी के साथ तीनों सदस्य जो नेता है उनकी बातचीत हुई है और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब इस फीडबैक के बाद पंजाब को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। रंजीता, अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट की, सुनील जाखड़ जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि अगर उनके इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस की कला दूर होती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। क्या पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बदलने को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? जैसे कि पहले खबर आ रही थी कि उसको डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है, जैसे ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कमेटी की तरफ से जो सिफारिश की गई है कि सीएम प्रोजेक्ट, सीएम फेस प्रोजेक्ट ना किया जाए 2022 की चुनाव के लिए, इसको लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि सोर्स क्या कहते हैं कि कब तक हाईकमान इस पर कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। देखिए, जो मुख्य बात है इस 1 घंटे की बैठक से निकल कर आई, सुनील जाखड़ को लेकर पर्सनली कोई बयानबाजी नहीं की गई। सुनील जाखड़ पीसीसी है और अपने कार्यकाल उन्होंने अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ अध्यक्ष से क्या पार्टी चलती है? प्रदेश में जब सरकार है और संगठन के तालमेल को बढ़ाना है, ऐसे में अब तक कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। डिफंक बनी इस कमेटी को आखिर कब तक इस तरह से ढोया जाएगा? और चुनावी साल में भी अगर कमेटी इस तरह से रही तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा? ये एक सख्त बयान जो है आज की बैठक से निकल कर आया। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो सकता है, निश्चित तौर पर सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें सुनील जाखड़ को बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि इस रेस में कौन कौन होंगे, किस नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो मंत्री भी है, बताया जा रहा है उनको जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरह की भी खबर निकल कर आ रही है सिद्धू को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा पेंच जो है वो सिद्धू को लेकर है। सिद्धू की तरफ से ये कहा गया, जो सोर्स से जो पता चला हमें, कि सिद्धू का ये कहना है कि वो कैप्टन के नीचे काम नहीं
करेंगे, क्योंकि पहले भी मंत्री रहे हैं और किस तरह की नाराजगी और तलखी कैप्टन और सिद्धू के बीच में हुई है, ये तमाम मीडिया में ये खबरें निकलकर कई बार आई है। तो अब क्या किस तरह से सिद्धू को एडजस्ट किया जाएगा, जो लगातार ये खबर निकल कर आ रही है कि कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया जा सकता है सिद्धू को, क्या उसको लेकर विचार किया जाएगा? क्योंकि सिद्धू पर जब बात की गई तो तीनों सदस्यों से बातचीत की गई, लेकिन उस पर राहुल गांधी ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। ये इसका मतलब कि आला कमान या यूं कहें कि कांग्रेस में राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी हो, क्योंकि प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के सबसे करीब मानी जाती है गांधी परिवार में, और सोनिया गांधी, तो इन तमाम जो कांग्रेस नेतृत्व है ये क्या आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे? क्योंकि पत्ते नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अब भी जो है वो नेतृत्व ने नहीं खोले हैं। रंजीता, अगर प्रगट सिंह की बात की जाए, प्रगट सिंह को लेकर आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि सोर्स के हवाले से ये खबर है कि उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि प्रगट सिंह कमेटी के सामने पेश होते हैं, पेश होने के बाद भी मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या माना जाए, कैसा एक्शन हो सकता है, कब तक एक्शन प्रगट सिंह के खिलाफ लिया जा सकता है? जैसे सोर्स के हवालों से खबर है कि और भी पार्टियों के संपर्क में है, कुछ पता चल पाया किन किन पार्टियों के संपर्क में, किन पार्टियों की तरफ से उनके साथ संपर्क किया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, लगातार ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में है प्रगट सिंह। जो कमेटी है उसके सामने तो अपनी बात रखी, लेकिन इसके बाद वो मीडिया में भी तल्ख तेवर में नजर आए, और कहा यह जा रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि इसको लेकर जो पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है हरीश रावत, उन्होंने फटकार भी लगाई है प्रगट सिंह को, और ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी बयानबाजी से नहीं रुके तो आने वाले समय में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और इसकी रिपोर्ट आज की इस बैठक में राहुल गांधी को भी दी गई, और कांग्रेस नेतृत्व भी इस मामले में संजीदा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से ये मैसेज दिया गया है कि पार्टी में रहने वाले नेता, चाहे वो मंत्री रहे या कोई भी, अगर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी मीडिया फोरम में और सार्वजनिक जगहों पर अगर करते हैं तो उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। जिस तरह से प्रगट सिंह लगातार बयानबाजी करते नजर आए हैं, कैप्टन के खिलाफ भी उन्होंने कई बार बयान दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कमेटी उसी के लिए बनाई गई थी कि अपनी बात रखे, तो जब कमेटी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके बाद फिर मीडिया में बयान देने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं इस पूरी खबर से निकल कर आ रहा है कि प्रगट सिंह को एक चेतावनी दी गई है कि अगर आने वाले समय में वो अपनी बयानबाजी से नहीं रुके तो उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। रंजीता, बने रहिए। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, ਵੱਡੀ खबर दस रहे राहुल गांधी नाल 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਛਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤਾ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ अनुशासनी कार्रवाई हाईकमान के वलों प्रगट सिंह के खिलाफ की जा सकती है। यह भी सूत्र दस रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रगट सिंह संपर्क विच ने ते लगातार प्रगट सिंह की गल की जाए, जिवें कि कमेटी के अगे पेश भी होंदे ने, कमेटी अगे पेश होने तो बाद भी चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ते सवाल खड़े करते हैं, डोजियर तक कमेटी नूं सौंपण दे मुख्यमंत्री ते इल्जाम लगाए जाते हैं प्रगट सिंह के वलों। तो हुण सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर है कि प्रगट सिंह के खिलाफ हाई कमान अनुशासनी कार्रवाई कर सकता है। हाई कमान के वलों प्रगट सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि प्रगट सिंह लगातार कदे इस तो पहला संदीप संधू जिहड़े कि पोलीटिकल एडवाइजर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर दे, उन्हां ते इल्जाम लगा चुके हैं। उस तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ते इल्जाम लगा चुके